मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 122 122। माया मुक्त जीवेर नाई स्वत कृष्ण ज्ञान जीवेरे कृपाय कैले कृष्ण वेद पुराण। Translation purport by Srila Prabhupada. Translation: the conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort, but out of causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literature and its supplements, the Puranas. Purport by Srila Prabhupada. A conditioned soul is bewildered by the Lord's illusory energy, Maya. Maya's business is to keep the conditioned soul forgetful of his real relationship with Krishna. Thus, the living entity forgets his real identity as spirit soul, Brahm, and instead of realizing his factual position, thinks himself the product of the material energy. According to Srimad Bhagavatam 1.7.5, Jaya Samohita Jiva Atmanam Trigunatmakam Paro Api Manute Anartham Tat Kritam Chabipadyate. Due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks of himself as a material product and thus undergoes the reactions of material miseries. This is a description of Maya's action upon the conditioned soul. Thinking himself a product of the material energy, the conditioned soul engages in the service of the material energy in so many ways. He becomes the servant of lust, anger, greed, and envy. In this way, one totally becomes a servant of the illusory energy. Later, the bewildered soul becomes a servant of mental speculation. But in any case, he is simply covered by the illusory energy. Out of his causeless mercy and compassion, Krishna has compiled various Vedic literatures in his incarnation as Vyasdev. Vyasdev is a Sakyavesh avatar of Lord Krishna. He has very kindly presented these literatures to awaken the conditioned soul to his senses. Unfortunately, at the present moment, the conditioned souls are guided by demons who do not care to read the Vedic literatures. Although there is an immense treasure house of knowledge, people are engaged in reading useless literature that will give them no information on how to get out of the clutches of Maya. The purpose of the Vedic literatures is explained in the following verses. Om Ajnantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का स्वागत है इस भक्ति वर्धनम कार्यक्रम में हर मंगलवार को इसी हॉल में। अच्छी बात है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि हम लोग आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो कभी कभी
जीव शब्द भी आता है हमारे लिए। इन दोनों शब्दों में फर्क है। जो शुद्ध होते हैं उसको आत्मा कहते हैं, शुद्ध आत्मा। लेकिन जब हम लोग माया के अधीन आ जाते हैं तो उसको बद आत्मा कहते हैं या जीव कहते हैं। जैसे जो जेल में है वो भी नागरिक ही है, लेकिन उसको कैदी कहते हैं। जो जेल के बाहर है वो नागरिक है, जो जेल के अंदर है वो भी नागरिक है, लेकिन अंदर वाले को कैदी कहते हैं, बाहर वाले को सिर्फ नागरिक कहते हैं। तो जो माया के अधीन है उसको जीव कहते हैं, जो जेल के अंदर है इस भौतिक दुनिया के अंदर। जो मुक्त है, आध्यात्मिक जगत में है या कृष्णा के साथ है, वो आत्मा। तो जीव मतलब बद आत्मा या इंग्लिश में कंडीशन्ड सोल। मतलब वो नेचुरल व्यवहार नहीं है उसका। आत्मा का नेचुरल व्यवहार क्या है? प्राकृतिक व्यवहार, कृष्ण की सेवा करना। मगर माया के अधीन रहकर वो जीव कृष्ण की सेवा नहीं करता, उल्टा इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है कि हमारे जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, कि ये अभी ठीक चल रहा है ना? अभी ठीक चल रहा है, मत डिस्टर्ब करो। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा कि हर इंद्री अपने वस्तु के संपर्क में आए, इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में। इसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जैसे हम पूरा दिन भागदौड़ करते हैं कि हमारा जीभ किसी अच्छे खाने की चीज के संपर्क में आए, हमारी आंख कोई सुंदर रूप के संपर्क में आए, हमारे कान कुछ अच्छा मधुर संगीत या ध्वनि के संपर्क में आए, हमारा नाक कुछ अच्छा खुशबू प्राप्त हो, और हमारे त्वचा से कुछ अच्छा आनंददायक स्पर्श हो। जैसे गर्मी में ठंडे एसी का स्पर्श अच्छा लगता है, ठंडी में गर्म पानी का स्पर्श अच्छा लगता है, नरम चीज का स्पर्श अच्छा लगता है, जीभ पे कुछ मीठा डाला तो अच्छा लगता है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, हम लोग कर्म करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि ये अपने अपने विषय वस्तुओं के संपर्क में आए, और जब संपर्क होता है तो हमें बहुत आनंद आता है। जीवन का जो दुख है उसको भुलाने के लिए हम ये संपर्क चाहते हैं। दिन भर का तकलीफ है भागदौड़ का, तो शाम को अच्छा बगीचे में गए तो अच्छा लगता है, सिनेमा में गए तो अच्छा लगता है, समुद्र किनारे बैठे तो अच्छा लगता है, या रेस्टोरेंट में खाए या दारू पिए तो अच्छा लगता है। अलग अलग तरीके से हम संपर्क चाहते हैं ताकि कुछ रिलीफ मिले, कुछ आनंद आए, कुछ दुख को भूले। मगर जब भी ये संपर्क होता है हम माया में और फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे एक बहुत बड़े खेती में एक चूहा रहता था, खाली खेती था, सिर्फ मिट्टी था, और वो मिट्टी बहुत गर्म था क्योंकि धूप बहुत था, तेज धूप था, गर्मी का मौसम था, वो मिट्टी बहुत गर्म हो गया था। तो चूहे को उधर रहना जमता नहीं था। गर्म मिट्टी में कभी चले हो बिना चप्पल के, बहुत तकलीफ होता है। तो चूहा न खड़े हो सकता है, न बैठ सकता है, न लेट सकता है,
न चल सकता है, तो क्या करे? तो क्या करता था? उस गर्म बालू में, गर्म मिट्टी में गोल गोल दौड़ता था। दौड़ने से थोड़ा कम चटका लगेगा, इसलिए गोल गोल दौड़ता था। लेकिन कितना घंटा दौड़ेगा? ज़्यादा घंटा दौड़ नहीं सकता। तो वो दौड़ता था और सोचता था कुछ तो मुझे राहत मिले, कुछ तो मुझे इस तकलीफ से आज़ादी मिले, मगर उसको कुछ प्राप्त नहीं होता था। दौड़ते दौड़ते कुछ घंटों बाद वो एक ऐसे जगह पर आया जहाँ पर छांव था, तो वो रुक गया। उसको बहुत राहत मिला। धूप में दौड़ते दौड़ते छांव में आए तो राहत मिलेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। तो वो दौड़ते दौड़ते एक जगह पे आया जहाँ पर राहत मिला, वो रुक गया। क्या था वो जगह? वो एक कोबरा का परछाई था। तो कोबरा के परछाई में आया, कूल ठंडा हो गया। लेकिन अगले पल क्या हुआ? कोबरा ने चूहे को खा लिया। ये किसका कहानी है? चूहे का या हमारा? हमारा कहानी है। हम दिन भर गरम गरम घूमते रहते हैं, अलग अलग प्रकार का हमारे हृदय में गरम होता है। साल भर, जीवन भर, कभी परिवार से दुख आता है, कभी ऑफिस से दुख आता है, कभी सड़क पर लोगों से दुख आता है, कभी मच्छर से दुख आता है, कभी कुत्ते से दुख आता है, कभी कोरोना वायरस से दुख आता है। हर प्रकार के दुख आते हैं हमारे में और हम घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। फिर जब हमारा इंद्रियां किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं, सिगरेट पीता है आदमी, या दारू पीता है, या रेस्टोरेंट में खाता है, या स्त्री का संबंध रखता है, या नॉवेल पढ़ता है, या फिल्म देखता है, मूवी देखता है, तो कुछ संपर्क में आता है वस्तु, तो उसको ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लग रहा है। लेकिन उसको नहीं मालूम क्या हो रहा है, माया पकड़ रही है। माया पकड़ रही है मतलब क्या? ये जो संपर्क होता है इंद्रिय विषय वस्तु के साथ, उसमें बंधन होता है, कर्म बंधन होता है और पाप का बंधन होता है, और उसके कारण व्यक्ति का नरक लोक में टिकट कंफर्म हो जाता है। उसको नरक लोक जाना पड़ता है। तो इसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। कितना भी व्यक्ति बुद्धिमान हो, कितना भी धनी हो, कितना भी कला हो, कितना भी ऊंचा भौतिक शिक्षा हासिल किया हो, या कितना भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, इससे कोई छुटकारा पा नहीं सकता। अपने बुद्धि से, अपने बाहुबल से, अपने धन से, अपने नेटवर्क से, अपने टैलेंट से, अपने आइडिया से इसे छुटकारा पा नहीं सकता। कर्म के बंधन में सबको फंसना ही है। बड़े धृतराष्ट्र राजा थे, वो फंसे, और भीष्म पितामह ने अपने जीवन में सिखाया कि मैं भी फंसा। कर्म के बंधन से कोई छूट नहीं सकता। तो श्रील व्यासदेव जी जो कृष्ण के अवतार हैं, 5000 साल पहले वो ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने कलयुग में भविष्य देखा लोगों का, और देखा लोगों का हालत बहुत खराब होगा, कि कर्म के बंधन में ऐसे फंसेंगे कि सब लोगों का आयु कम हो जाएगा, सब लोग सुस्त हो जाएंगे, हर छोटी सी बात पे भाई भाई झगड़ा करेंगे, पति पत्नी झगड़ा करेंगे, माता पिता बच्चे झगड़ा करेंगे, पड़ोसी पड़ोसी झगड़ा करेंगे, देश देश झगड़ा करेंगे, और भक्ति में किसी का कोई रुचि नहीं होगा, हेल्थ किसी का अच्छा नहीं होगा, सब लोग पाखंडी हो जाएंगे, बाहर से कुछ और रहेगा, अंदर से कुछ और रहेगा, और अज्ञानी होंगे। तो व्यासदेव जी ने ये भविष्य देखा कलयुग में लोगों का, कि कलयुग में इतना सारा दुख होगा, परेशानी होगा, तो लोगों को मदद करने के लिए व्यासदेव ने एक उपाय किया।
क्या उपाय किया? वेबसाइट बनाया, मंदिर बनाया, भ्रमण किया, ऐप बनाया? नहीं, उन्होंने उपाय किया, किताब लिखा। एक नहीं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, ये सब लिखा। तो ये जो ग्रंथ लिखे, ये व्यासदेव जी का उपाय है कि भविष्य में जब लोग ये ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इस माया से और इस कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, उस समय कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई कागज नहीं था, कोई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई पेट्रोल ट्रक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। फिर भी उन्होंने किताब लिखे क्योंकि उनको मालूम था भविष्य में ट्रक आने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन आने वाले हैं, प्रिंटिंग आने वाला है, तब जाकर ये किताबों का प्रिंटिंग होगा, ट्रांसलेशन होगा, भाषांतर होगा और अलग अलग गांव में गाड़ियों से पहुंचाए जाएंगे। उनको ये सब मालूम था कि ये टेक्नोलॉजी आने वाला है, इसलिए 5000 साल पहले उन्होंने ये पुस्तक लिखे, ये ग्रंथ लिखे। क्यों लिखे? ये उपाय है कलयुग में हम लोगों के लिए, जीव के लिए, कि कर्म के बंधन से मुक्ति मिले। जैसे मैंने कहा कि कर्म के बंधन से हम खुद अपने मेहनत से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मुक्त होने के लिए जो प्रयास करेंगे हम, वो भी कर्म होगा। तो अगर कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए मैं कर्म करूंगा तो उस कर्म का तो बंधन होगा, और उस कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए मैं तीसरा कर्म करूंगा तो उसका बंधन होगा। तो कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए दूसरे कर्म करेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं, फिर फंस ही जाएंगे, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। इसके लिए जो उपाय है वो हमारा कर्म नहीं है। जैसे फिल्म में दिखाते हैं कि कोई हीरोइन को विलेन पकड़ लेता है, फिर हीरोइन खुद को छुड़ा नहीं सकती, हीरो की जरूरत है। फिर वो हीरो आएगा, भले उसके पास बंदूक नहीं हो या एक छोटा सा पिस्तौल हो, और विलेन के साथियों के पास 1000 ऑटोमेटिक गन हो, लेकिन उन लोगों का एक भी गोली इसको लगेगा नहीं टारगेट पे। इसका एक पिस्तौल में हजारों लोग मारे जाएंगे। और इस तरीके से वो हीरोइन को छुड़ाएगा, शांत रखिए, हीरोइन को छुड़ाएगा और पब्लिक ताली मारेगा। सबको मालूम है एक पिस्तौल से 1000 लोगों को मारना संभव नहीं है, फिर भी ताली क्यों बजाते हैं हम? क्योंकि हमको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है कि एक हीरो आएगा तो ही हीरोइन बचेगी। और इस कहानी पे इसलिए विश्वास होता है हमें क्योंकि हम वो हीरोइन हैं, फंसे हुए हैं, माया वो विलेन है और हीरो चाहिए हमको, और वो कृष्ण है। सिर्फ कृष्ण हमको बचा सकते हैं, कोई जीरो आके हमको बचा नहीं सकता। हीरो चाहिए, जीरो नहीं चाहिए। दुनिया में सब जीरो है, केवल कृष्ण हीरो है। तो व्यासदेव जी ने ये ग्रंथ लिखे ताकि हम उस हीरो को अपने जीवन में ऐड करें, अपने जीवन में उतारें। तो सिर्फ हमें कृष्ण बचा सकते हैं, और उस बचने के लिए, कृष्ण से संबंध बनाने के लिए ये ग्रंथ बताए गए हैं। आप लोग मोबाइल बंद रखिए ना, सब लोग मोबाइल बंद रखिए। जिसके पास भी फोन है साइलेंट पे कर लीजिए प्लीज। तो जो ग्रंथ है, जो ज्ञान है माया से बचने के लिए, देखिए माया 2 प्रकार से हमको बंधन में डालती है। एक होता है आवरण आत्मिक शक्ति, कवरिंग पोटेंसी,
और दूसरा होता है प्रेक्षप आत्मिका शक्ति, पुलिंग डाउन पोटेंसी। आवरण आत्मिका शक्ति मतलब माया हमारा जो असली ज्ञान है उसका आवरण करती है, उसको ढक देती है। जैसे मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, लेकिन माया इस ज्ञान को ढक देती है और हमको अज्ञान आ जाता है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं माता हूं, पिता हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, मैनेजर हूं, ऑफिसर हूं, टीचर हूं, ड्राइवर हूं। ये जो सब मैं कर रहे हैं हम, ये गलत है, ये अज्ञान है, ये माया का आवरण है। माया ने हमारा असली ज्ञान ढक दिया है। हम कौन हैं? जीव। हाँ, हम हैं कौन? हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के सेवक हैं, आत्मा है। लेकिन अभी हमारा ये ज्ञान ढक गया है, इसके लिए हम अपने आप को कुछ और सोचते हैं। कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ, सुअर सोचता है मैं सुअर हूँ। आवरण आत्मिका, इसलिए सुअर मल खाता है और आनंद प्राप्त करता है। मल में आनंद हो सकता है? पिज्जा में हो सकता है? सुअर मल खाता है और आनंद प्राप्त करता है, हम हंसते हैं सुअर के ऊपर। हम पिज्जा खाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, इंद्र हमारे ऊपर हंसता है। इंद्र सोमरस पीता है, आनंद प्राप्त करता है, ब्रह्मा उसके ऊपर हंसते हैं। ब्रह्मा आनंद प्राप्त करते हैं, कृष्ण उसके ऊपर हंसते हैं। सब आवरण आत्मिका, सब फंसे हुए हैं। तो ये अज्ञान है। तो माया का पहला तरीका है हमें फंसाने का, आवरण आत्मिका शक्ति, कि हमारा ज्ञान ढक दिया है, असली ज्ञान ढक दिया है। दूसरा है प्रेक्षपक आत्मिका, मतलब अगर कोई माया से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है तो माया नीचे खींचती है, पुलिंग डाउन पोटेंसी। जैसे अगर आप जेल में हो और जेल के सब नियम पालन करते हो तो आपके ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आपसे खुश रहेगा जेलर। लेकिन अगर आप जेल से भागने का कोशिश करते हो तो आपके ऊपर ज्यादा ताकत इस्तेमाल किया जाएगा आपको अंदर रखने के लिए। तो अगर कोई इंद्रिय तृप्ति करता है तो माया खुश रहती है कि हाँ मेरे अधीन है, ये गड़बड़ कर रहा है। लेकिन जब वो माया के बाहर निकलने का कोशिश करता है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है, तो माया ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है उसको अंदर रखने के लिए। इसलिए कभी कभी भक्तों को लगता है कि मैं भक्ति करता हूँ, मेरे ऊपर माया का ज्यादा प्रभाव है, मेरा पड़ोसी तो सब हमेशा खुश रहता है, भक्ति नहीं करता है, मांस मच्छी खाता है, दारू पीता है, वो तो खुश रहता है। वो इसलिए क्योंकि माया उसे खुश है कि ये तो मेरे अधीन ही है। लेकिन हम माया से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो माया ज्यादा ताकत लगाती है हमको अंदर रखने के लिए, हमको प्रलोभन देने के लिए, हमको आकर्षित करने के लिए। तो ये प्रेक्षप आत्मिका शक्ति, पुलिंग डाउन पोटेंसी, हमको नीचे खींचने के लिए। तो माया इतनी शक्तिशाली है, मम माया दुरतया, कि माया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो ग्रंथ हैं इनमें माया से बाहर निकलने के लिए ज्ञान दिया गया है, बाहर निकलने का तरीका दिया गया है। ये जो वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता है, तो ये जो ज्ञान है ग्रंथों में, ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। ये 3 शब्द कितने लोग सुने हैं? नहीं? देखिए बहुत जरूरी शब्द है, मैं बताता हूं इसका मतलब। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। बोलिए एक बार। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। समझ गए? कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए।
पहली बार जिसे सुना है बोलिए। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। हाँ, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। और कौन बताएगा? हाँ, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। गुड। नेक्स्ट। हाँ, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। गुड। हाँ, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। गुड। और संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। हाँ, और संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। और संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। और संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। बताओ पीछे। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अच्छी बात है। संबंध ज्ञान मतलब मैं कौन, कृष्ण कौन, और मेरा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, ये आता है संबंध ज्ञान। तो शास्त्रों में इसके बारे में चर्चा की गई है, बहुत सारा समझाने का प्रयत्न किया गया है कि मैं कौन, फिर बहुत सारा तर्क दिया गया है कि कृष्ण भगवान क्यों, और तीसरा सबसे जरूरी, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। ये पहला चरण संबंध ज्ञान। फिर दूसरा अभिधेय। अभिधेय मतलब अगर संबंध पता चल गया तो उस संबंध के अनुसार जीना चाहिए, उस संबंध के कर्तव्य करने चाहिए, उसको अभिधेय कहते हैं। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अभिधेय। सुबह जल्दी उठना है, नहाना है, जप करना है, दंडवत प्रणाम करना है, शास्त्र पढ़ना है, ये डूज हो गए। फिर मांस मच्छी नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं करना है, शादी के बाद स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना है, ये सब डोंट्स। तो ये को कहते हैं अभिधेय। संबंध के ऊपर क्या कार्य करने चाहिए उसको कहते हैं अभिधेय। रोज की भक्ति, और अभिधेय करने के बाद क्या फल प्राप्त होगा उसको कहते हैं प्रयोजन। क्या फल है? कृष्ण प्रेम। रोज भक्ति का कार्य करेंगे तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो मेरा जो संबंध है कृष्ण के साथ वो प्रेम का संबंध है। मैं कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण मेरे मालिक हैं, वो मुझे प्रेम करते हैं, तो मुझे भी उनको प्रेम करना चाहिए। तो ये संबंध ज्ञान। और प्रेम कैसे करना है वो अभिधेय में आता है। नियम क्या पालन करने हैं। अभी तक प्रेम आया नहीं है, प्रेम आना चाहिए, इसके लिए कुछ नियम पालन करने हैं, वो नियम पालन करना चाहिए। नियम पालन नहीं करेंगे, अभिधेय नहीं करेंगे तो प्रयोजन प्राप्त नहीं होगा, आखिरी फल प्राप्त नहीं होगा। जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, नरक लोक में विजिट चलता रहेगा। इसलिए अभिधेय पालन करना बहुत जरूरी है। अभिधेय मतलब सेवा करना, प्रेम मतलब सेवा करना। प्रेम मतलब जाके आई लव यू बोलना राधा रसबेरी को नहीं। प्रेम मतलब सेवा करना। मान लो कोई लड़का लड़की है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शाम को बगीचे में मिलते हैं और लड़का लड़की को कहता है आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, और लड़की कहती है थोड़ा प्यास लगा है, पानी लेके आओ। लड़का कहता है नहीं नहीं आई लव यू बस, और कुछ नहीं। तो प्रेम कहोगे? प्रेम मतलब सेवा। तो कृष्ण को प्रेम करना मतलब कृष्ण की सेवा करना। लेकिन सेवा कैसे करना तो हमको मालूम ही नहीं। इसके लिए मालिक का ज्ञान चाहिए, सेवा का ज्ञान चाहिए। तो मालिक का ज्ञान आता है संबंध ज्ञान में, सेवा का ज्ञान आता है अभिधेय में। समझ गए? तो कृष्ण के बारे में जानते हैं हम संबंध ज्ञान, और सेवा कैसे करना है अभिधेय। तो रोज सेवा करना चाहिए तो हमें प्रयोजन प्राप्त होता है, सेवा का फल प्राप्त होता है जो है कृष्ण प्रेम। चैतन्य महाप्रभु इसको एक बहुत अच्छी कहानी से समझा है। वो बताया कि एक जवान आदमी था,
जो बहुत दुखी था, खाने के लिए नहीं था उसके पास, गरीब था बहुत। तो एक एस्ट्रोलॉजर उसके पास आया, ज्योतिष आचार्य, और बोला कि तुम इतना दुखी क्यों हो? असली बात तो यह है कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बहुत सारा धन छोड़ के गए, लेकिन जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तो तुम उसके साथ थे नहीं, वो दूसरे गांव में मरे, तुम दूसरे गांव में थे, इसलिए वो तुमको बता नहीं पाए। तो हालांकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए धन छोड़ा, फिर भी तुम भूखे हो और गरीब हो। लेकिन जब उसने कहा उसको कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए धन छोड़ा है, तो उसको कुछ आशा आई कि भविष्य में मेरा जीवन सुधार होगा। तो इसको कहते हैं संबंध ज्ञान, कि हमारे पिता है कृष्ण, लेकिन हम उनको छोड़ दिए, हम उनको भूल गए, और इस दुनिया में दुखालयम अशाश्वतम, दुखी रह रहे हैं। तो जब कोई साधु आके या शास्त्र पढ़ के हम पता चलता है कि मेरे पिता है कृष्ण, तो मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे जब मैं उनके संपर्क में आऊंगा। तो ये पहला चरण, कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंध स्थापित हो गया। ज्योतिष ने, एस्ट्रोलॉजर ने जब उसको कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए धन छोड़ा है, तो धन के साथ उसका संबंध स्थापित हो गया। लेकिन फिर भी वो भूखा ही रहेगा, क्योंकि धन के साथ संबंध स्थापित हो गया, लेकिन धन अभी प्राप्त नहीं हुआ। तो सिर्फ संबंध चाहिए कि आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है। तो जब हम लेक्चर सुनते हैं तो वो संबंध का ज्ञान सुनते हैं, लेकिन लेक्चर के बाद अगर हम पालन नहीं करेंगे तो सब सुनते रहेंगे कि मेरे पास धन है, लेकिन वो धन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सुनने के बाद क्या करना है? पालन करना है। क्या करना है? पालन क्या करना है? पालन क्या करना है? पालन करना है। सुनने के बाद पालन करना है, तो वो धन प्राप्त होगा। नहीं तो फिर लेक्चर में हंस के क्लैप चाली बजा के चले जाएंगे, दूसरे दिन वही हालत रहेगा, सालों साल वही हालत रहेगा। लेकिन अच्छी बात है, सुने तो सही कि मेरे पिता ने धन छोड़ा है मेरे लिए, आशा तो जागृत हुई। फिर अभिदेय, वो धन निकालना कैसे है? तो वो ज्योतिष आचार्य कहते हैं वो धन आपके घर के आंगन में ही गाड़ा है, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाना है। जिस घर में रो रहा था रोज, जिस घर में भूखा सोता था रोज, नींद नहीं आती थी, उसी घर में धन है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, ज्ञान नहीं है इसके लिए, दुखी है। तो अभी आंगन में तो 4 दिशाएं हैं ना, दक्षिण और पश्चिम और पूरब और उत्तर और पूरब, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ज्योतिष ने कहा कि दक्षिण में खुदाई नहीं करना। दक्षिण में खुदाई करोगे तो उसमें बहुत सारे कीड़े और मच्छर आएंगे जो तुम्हें काटेंगे, मत करना। फिर कहा पश्चिम में भी खुदाई मत करना। पश्चिम में खुदाई करोगे तो एक भूत बाहर आएगा जो तुम्हें बहुत परेशान करेगा। उसने कहा कि उत्तर में भी खुदाई नहीं करना, उत्तर में काला सांप होगा जो तुम्हें डसेगा और मार देगा। ईस्ट में, पूरब में थोड़ा सा खुदाई करना, धन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बताया उसने, क्या करना है क्या नहीं करना और क्या नहीं करना है। डू और दोनों पालन करना जरूरी है। जैसे डॉक्टर हमको बीमार होते हैं तो दोनों बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम सिर्फ क्या करना है किया, लेकिन क्या नहीं करना है का ध्यान नहीं दिया तो भी हमको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे बकेट में पानी भर रहे आप और नीचे होल है, भर तो रहे आप लेकिन मिलेगा कुछ, नहीं। चला जाएगा। तो पथ्य अपथ्य, डू डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों पालन करना चाहिए। ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, अभिधेय, भक्ति का प्रोसेस। तो ज्योतिष आचार्य ने जो समझाया कि साउथ में, दक्षिण में
कर्मकांड बोलते हैं उसको, शास्त्रों में कर्मकांड बताया गया है, लेकिन उसमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि कर्मकांड से बहुत तकलीफ होती है। जैसे मच्छर काटते रहते हैं, वैसे कर्मकांड करेंगे तो थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो बहुत तकलीफ होती है। जो लोग यज्ञ करते हैं देवताओं को खुश करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, पितर की पूजा के लिए, पता नहीं क्या क्या करते हैं, आखिर में क्या मिलता है? मुंह काला होता है और क्या होता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है, पैसा खर्च होता है अलग। तो ये कर्मकांड। फिर पश्चिम में ज्ञान कांड, मेंटल स्पेकुलेशन। उससे सिर्फ मन विचलित होता है, बुद्धि विचलित होता है, पूरा दिन तर्क करते रहते हैं, लॉजिक करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, कोई नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। वो भूत है, वो पूरा मन को विचलित करता है। बोलने में तो आदमी बहुत स्कॉलर पंडित लगता है, लेकिन एक भी प्रश्न का सही से उत्तर दे नहीं सकता, कोई सही से निर्णय ले नहीं सकता। मनोधर्मी, वेस्टर्न फिलोसोफर जैसे हो। उत्तर में ध्यान, योगा, वो क्या है? काला सांप है, वो खत्म कर देगा आपको। जो सिद्धि के कामी होते हैं, छोटा मोटा आसन करके सोचते हैं कि मैं महान भक्त योगी बन गया, वो सब भ्रष्ट लोग होते हैं। योगी मतलब वो जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, न कि वो जो आसन करता है, दाढ़ी लंबा करता है, या उपवास करता है, या सैफरन कपड़े पहनता है, उसको योगी नहीं कहते हैं। योगी मतलब जो ध्यान करता है, समाधि में रहता है, कृष्ण से जुड़ा हुआ रहता है। वो भी आज संभव नहीं है। ईस्ट में, पूरब में थोड़ा सा करेंगे तुरंत धन मिल जाएगा, उसको भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग बहुत आसान है, थोड़ा सा भक्ति करो आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। बस रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सी कृष्ण की सेवा करना है। वृंदावन में जब कृष्ण छोटे बालक के रूप में लीला करते हैं तो एक माता जी है, फल बेचती है। वो फल लेके आई नंद भवन, कृष्ण के घर के बाहर। तो कृष्ण ने देखा अच्छे अच्छे रंग बिरंगी फल, उनकी इच्छा हुई मुझे फल चाहिए। और उन्होंने देखा था उनके पिताजी फल कैसे खरीदते हैं, बार्टर सिस्टम। 1 किलो चावल दो, 1 किलो फल लो, 1 किलो दूध दो, 1 किलो कपड़ा लो, सब वजन के हिसाब से खरीदते। तो वो तुरंत, छोटे बालक थे, घर में गए किचन में, एक मुट्ठी भर चावल उठाकर बाहर भागे। अभी छोटी मुट्ठी उनकी पकड़ने की आदत नहीं, बहुत सारे चावल के दाने दोनों उंगली के बीच से गिर गए। दरवाजे पे पहुंचे, मुट्ठी खोला तो 4 या 5 दाने चावल के। अभी वजन के हिसाब से 4 दाने चावल के बदले 1 अंगूर भी नहीं मिलेगा। तो मायूस हो गए कि मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, 4 दाने में क्या मिलेगा। लेकिन वो फल वाली माता जी ने देखा इतना सुंदर लड़का, श्याम सुंदर, बहुत सुंदर। बोली अरे लाला ये काफी है, और 4 दाने लिए 8-10 फल दे दिए। तो कृष्ण बहुत पकड़ के खुश हो गए कि मेरे पिताजी से ज्यादा प्रॉफिट तो मैं कमाया, इतना सारा प्रॉफिट कमाया। जाके मैया को दिखाता हूँ। दौड़े अंदर, और ये माता जी अपना फल का टोकरी उठाने गई तो सब फल गायब। उसके बदले वो सब हीरे, सोने, जवाहरात बन गए। तो कृष्ण को कुछ एक्स्ट्रा फल दिए तो उसका नुकसान हुआ नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा फायदा हुआ। तो इसको कहते हैं सेवा। कृष्ण की सेवा करने से हमारा नुकसान होता है नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा फायदा होता है। मगर वो सेवा प्रेम से करना चाहिए। घर में जो कुकिंग करते हो, पहला थाली भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं। भगवान को आपका थाली नहीं चाहिए, आपका दाल चावल सब्जी नहीं चाहिए, उनको आपका प्रेम चाहिए। और प्रेम किस में होता है? चावल में, दाल में, सब्जी में, रोटी में, क्या पहले थाली में? पहले थाली में होता है, दूसरे थाली में नहीं होता है, पहले थाली में होता है। जिसको प्रेम करते हैं पहले उसको देते हैं। जैसे मान लो पिताजी एक बक्सा मिठाई का खरीद के घर पे आएंगे और अपने छोटी गुड़िया को देंगे। बोला गुड़िया मिठाई लाया मैं। गुड़िया खुश हो जाएगी, डब्बा खोलेगी,
इतने 50-60 मिठाई का पीस रह गया, वो एक पहला पीस उठाएगी, बोलेगी पापा पहला पीस आप खाओ। पापा खुश होगा क्या? नहीं। क्यों खुश होगा? उसको मिठाई मिली इसके लिए नहीं। पापा तो 10 बॉक्स खरीद सकता है ना, लेकिन पापा क्यों खुश होंगे? क्योंकि प्रेम मिला, पहला मिला, पहले में प्रेम होता है। पिताजी इतने खुश होंगे, अगले दिन एक बॉक्स और लेके आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है वापस मेरे को पहला मिलेगा, वापस गुड़िया का प्रेम मिलेगा मुझे। तो पहले का बहुत महत्व है। यही अगर गुड़िया पापा से मिठाई का बॉक्स लेगी, खोलेगी, 60-70 टक्के खा लेगी, फिर बोलेगी बचा हुआ आप खाओ, पिताजी खाएगा? उठा के फेंक देगा, बोलेगा मेरे को क्या करना है इसका। लेकिन पहला जरूर खाएंगे पिताजी। क्यों? क्योंकि पहले में प्रेम है। इसलिए जो पहला थाली है वो भगवान को दीजिए, ठाकुर जी को दीजिए, उसमें प्रेम है। जो कुछ भी खरीदते हो आप, दूध, फल, चावल, सब्जी, फर्नीचर, कपड़ा, गहने, बर्तन, कार, घर, जो भी खरीदते हो, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, उनको ऑफर करना चाहिए। उसको प्रेम कहते हैं। घर में कोई भी वस्तु आई, पहले वो अल्टर पे जाना चाहिए, बाद में महाप्रसाद के रूप में हमें उसका सेवा करना चाहिए। उसको प्रेम कहते हैं। उसी तरह दिन का पहले कुछ घंटे भगवान को देना चाहिए, उसको मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। सुबह जप कीजिए, सुबह गीता पढ़िए। ऐसे तो जप का कोई नियम नहीं है, पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन सुबह किया तो अच्छा है, फ्रेश रहता है। तो प्रेम मतलब सेवा करना, प्रेम मतलब जो भी हमारे पास है वो कृष्ण को देना। फिर आपका धन हो, आपका तन हो, मन तन मन धन हो, आपका कला हो, आपके गुण हो, आपको सिंगिंग आता है, गाने को आता है तो कृष्ण के लिए गाइए। आपको पेंटिंग आता है तो कृष्ण के लिए पेंटिंग कीजिए। आपको संगीत बजाने को आता है तो कृष्ण के लिए बजाइए। जो भी आता है आपको, वो कृष्ण की सेवा कीजिए उससे। तो ये सेवा है, ये प्रेम है, तो ये अभिधेय है, ये करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है रोज जप करना। 16 माला कम से कम माला के ऊपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रोज 16 माला करना चाहिए, बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। हरि नाम भगवान का नाम मुख से कान के अंदर जाता है, कान से हृदय में जाता है और हृदय साफ होता है। हृदय में जो आत्मा स्थित है वो जागृत होती है कि यस आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का दास हूँ। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये कब होता है? जब हरि नाम हृदय में जाता है। और हृदय में कहाँ से जाएगा? कान से। और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ कान से हृदय में फ्लाईओवर है और कहीं आँख से नाक से नहीं है। तो कान से सुनना है। और कान में कब जाएगा? जब मुख से जोर से बोलेंगे, मन में नहीं। तो इतना जोर से बोलिए कि खुद को सुनाई दे। इतना जोर से नहीं कि पड़ोसी परेशान हो जाए, लेकिन इतना जोर से कि खुद को सुनाई दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए, सुनिए, बोलिए, सुनिए। ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला, इतना अच्छा गिफ्ट है हमें कि इतना थोड़ा मेहनत कीजिए, रोज हरि नाम कीजिए, 16 माला, अगले 30-40 साल जो भी आपका उम्र है, आखिरी में आप डायरेक्ट भगवान श्याम सुंदर को फेस टू फेस देख सकते हो। जितना भी आपका उम्र है, कितना साल बचा है, 30 बचा है, 20 बचा है, 10 बचा है, 5 बचा है, 50 बचा है, 60 बचा है, जितना भी आपका बचा है, रोज 16 माला जप कीजिए, आखिर में डायरेक्ट श्याम सुंदर को फेस टू फेस देखिए। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। और मिस किया तो यमराज को फेस टू फेस देखिए। तो क्या करेंगे मिस करके? ये मनुष्य जीवन बहुत अच्छा मिला है। अभी बहुत सीरियस, गंभीरता से भक्ति करना चाहिए। तो ये अभिधेय है, रोज 16 माला जप करना, मंगल आरती करना, भागवत सुनना, 4 नियम का पालन करना, मांस मछली नहीं खाना, और
जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, शादी के बाद स्त्री के साथ संबंध नहीं करना, ईमानदारी से कमाना, एकादशी वगैरह का पालन करना, जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा भगवान के लिए, साधु के लिए, गाय के लिए सेवा करना, तो ये अभिधेय। तो इसका क्या फल मिलता है? प्रयोजन, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, वापस गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो ये सब लिखा गया है ग्रंथों में, और ये ग्रंथ हमें उपलब्ध किए हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किए हैं, प्रिंट किए हैं, तो हमें उनको पढ़ना चाहिए। ये हीरो है ग्रंथ, ये हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा, संबंध ज्ञान होगा, अभिधेय होगा, और हम वापस भगवान के धाम जाएंगे। तो भक्तों को ये आदत डालना चाहिए कि रोज ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये 3 बातें बताई गई है उसमें। और बहुत सारे प्रश्न होते हैं भक्ति में, तो ये ग्रंथों में उत्तर होते हैं। हम लोग जो प्रवचन करते हैं वो भी पढ़कर ही करते हैं। कुछ अपने माँ के पेट से तो ज्ञान लेके नहीं आए हम लोग, कुछ और अखबार वगैरह से तो नहीं लेके आए, ग्रंथ से ही लेके आए। तो इस्कॉन में जो भी होता है प्रभुपाद जी ग्रंथ के अनुसार होता है। 2 भक्तों में कुछ मतभेद भी हो गया तो उसका हल किसमें है? ग्रंथ में, कि प्रभुपाद जी ने क्या लिखा वो मान्य होगा। 2 नियम में मतभेद भी हो गया तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है वो मान्य होगा। बुक्स आर द बेसिस। तो ये हमें पढ़ने चाहिए और इसी को बांटना चाहिए। जब हम इनको बांटते हैं और लोगों के हाथ में ग्रंथ आते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है, उनकी भक्ति शुरू हो जाती है। एक बार कोई ग्रंथ के लिए धन दे दिया कि मुझे गीता चाहिए, धन ले लो, उसका भक्ति शुरू हो गया क्योंकि उसने कृष्ण के लिए कुछ दिया। भक्ति मतलब देना, लेना नहीं। कृष्ण से लेना उसको भक्ति नहीं कहते, वो तो पूरी दुनिया ले रही है, कृष्ण पाल रहे हैं हमें। कृष्ण को देना उसको भक्ति कहते हैं। तो एक बार किसी ने दिया तो वो भक्ति हो गया। तो ग्रंथ बांटने से हम लोगों को भक्ति करने का मौका दे रहे हैं। तो हमें ग्रंथ पढ़ने भी चाहिए और बांटने भी चाहिए। तो ऐसा व्यासदेव जी ने हमारे पे कृपा किया है, ये ग्रंथ लिखे और वेद पुराण उपनिषद लिखने के बाद भी वो पूर्ण तरीके से खुश नहीं थे। उनके मन में फिर भी कुछ दुख चल रहा था। तो वो नारद मुनि अपने गुरु जी के पास गए, बोले मैंने इतना सेवा किया, वेद लिखा, पुराण लिखा, उपनिषद लिखा, लोगों का भलाई किया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो नारद मुनि ने कहा क्योंकि आपने डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति के बारे में अभी तक लिखा नहीं है, तो आप एक और ग्रंथ लिखो कृष्ण की भक्ति के बारे में, श्रीमद् भागवतम। फिर नारद मुनि को पूरा समझाया भक्ति के बारे में। नेक्स्ट डे व्यासदेव जी फिर ध्यान में बैठे और गोविंद का दर्शन किया, भक्ति में और मैच्योर हो गए, भक्ति में आध्यात्मिक उन्नति किया। फिर जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा और वो फाइनल किताब है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हमको श्रीमद् भागवतम दिया है, खुद रात भर ट्रांसलेट करके, कि 4 वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़ना है, पढ़ भी नहीं पाओगे, पूरा कमरा भर जाएगा, इतने किताब है। लेकिन आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो अमल पुराना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, फाइनल किताब है। तो इसलिए रोज श्रीमद् भागवतम से प्रवचन होता है। तो हर घर में एक सेट श्रीमद् भागवतम होना चाहिए और आप उसको पढ़िए, पन्ना पढ़िए। तो व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा जो फाइनल ग्रंथ है, जो वेदों का सार है। अगर वेद पुराण उपनिषद एक पेड़ की तरह है तो श्रीमद् भागवतम एक फल की तरह है। तो अगर आम का फल मिल रहा है तो पेड़ क्या करेंगे? फल खाओ ना। तो पेड़ ग्रंथ, अगर सब ग्रंथ मिलकर एक पेड़ है तो श्रीमद् भागवतम एक फल है। और सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम कहे हैं वो फल का जूस बना दिए। फल काटना थोड़ा टाइम लगता है, जूस तो पिबतम पी लो। और प्रभुपाद जी उसको ग्लास में दे दी। एक टाकी जूस को उठा के पी नहीं सकते हम, प्रभुपाद जी ग्लास में दे दी। अभी क्या करना है? बस पीना है। बस कान खुले रखो भागवतम क्लास में, वो फल अमृत जाएगा अंदर और हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इतना शक्तिशाली है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम इसलिए लिखा गया है नित्यम भागवत सेवया। नित्यम मतलब रोज, प्रतिदिन, नित्यम भागवत सेवया। ऐसा नहीं लिखा है मंगलवार भागवत सेवया कि हर मंगलवार कुछ नहीं हो, या संडे भागवत सेवया, नहीं, नित्यम रोज।
तो रोज होता है मंदिर में भागवतम। रोज मंदिर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन होता है, या घर में किताब खोल के पढ़िए बेस्ट। तो रोज 1-2 पन्ना पढ़िए, 4-5 पन्ना पढ़िए, 10-20 पन्ना पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। और रोज 16 माला कीजिए, इससे हमारा भक्ति में उन्नति होता है। और हमें ये निश्चय करना चाहिए कि ये जन्म हम वापस भगवान के धाम जाए, एक और जन्म नहीं ले। फिर अगला जन्म लेंगे, माँ के पेट में 9 महीना उल्टा लटकेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर आपको स्कूल भेज देंगे, ABCD EFG करवाएंगे, फिर 2 1 2 2 2 4, फिर बाबा ब्लैक शीप एंड हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल एंड जैक एंड जिल। फिर 25 साल बर्बाद करेंगे, फिर इस्कॉन के कुछ भक्त आएंगे, आपका खर्चा करेंगे, आपको भक्त बनाएंगे, IWF वाले खर्चा करेंगे अलग, कांग्रेगेशन वाले डिपार्टमेंट खर्चा करेंगे अलग। अरे इसी जन्म खत्म करो ना, क्या वापस क्या अगला जन्म वापस। तो हमें बहुत गंभीरता पूर्वक सीरियसली भक्ति करना चाहिए कि ये जन्म लास्ट बर्थ, आखिरी जन्म, भगवान के धाम जाना है, वापस मुंबई में पैदा नहीं होना है। कुछ मतलब नहीं है, इतने करोड़ों जन्मों तक हम इतना बुद्धि, इतना डिग्री, इतना धन कमाया, क्या फल मिला? आखिर एक मुंबई में जन्म। कुछ बड़ा फल है क्या ये? कुछ मतलब ही नहीं है। क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया, आखिर एक जन्म मिला मुंबई में बस। तो ये कुछ मतलब नहीं है। इस जीवन का असली फायदा तब होगा जब वापस भगवान के धाम जाएंगे। एक और जन्म लेंगे तो कुछ मतलब नहीं है जीवन का, कुछ कमाया नहीं फिर। तो इस्कॉन में श्री प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई है, इतना सुंदर मंदिर बनाया है, ये हमको मौका दिया है कि हम ये मनुष्य जीवन इस्तेमाल करके बहुत गंभीरतापूर्वक कृष्ण की भक्ति करें। तो एक भक्त को बहुत सीरियस होना चाहिए, बहुत सीरियसली भक्ति करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये सारे पुराण व्याकरण में लिखा। हाँ, हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ जी। सतयुग में सब अच्छा चल रहा था, तो जो अच्छे काम कर रहे थे सबका मोक्ष हो जाता था। अभी कलयुग में इतने सारे जीव कहाँ से आ गए? सब लोग अच्छे नहीं कर रहे थे ना जी। सतयुग धीरे 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 त्रेता युग आया, तो कुछ लोग बचे ना। सतयुग के एंड में सब कुछ अच्छा नहीं था ना, इसलिए तो त्रेता युग आया। जी। फिर त्रेता युग के एंड में द्वापर युग आया, तो कुछ तो बचे थे। फिर द्वापर युग के एंड में कलयुग आया। राइट। फिर सब मनुष्य कर्म करते हैं ना, बाकी जानवर भी तो मनुष्य बनते हैं ना। जी। Right? करेक्ट। और कोई प्रश्न? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे